मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। Assalamu alaikum and a very cheerful good evening to you all. This is Faiza Shakil and this is Mehak. I welcome to you all on this award ceremony. We have been given this golden opportunity to host the program. I want to start the program, but before that, as we all know that about nothing can start without the name of most merciful and most beneficent Almighty Allah. So for that, I would like to call Barza. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you. Thank you, Barza. I would like to utilize this moment to thank our teachers who prepared us for the world outside. They have been as strict as father and loving as mother, equally caring like a friend. Now I would like to invite our Muhtashim sir and Shaved sir so that they provide us our wonderful prizes. Now we start award ceremony without any delay. First, I would like to invite our 10th class student. First, I would like to call Daraksha. Please come forward and get your prize. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ दरक्षा। मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सर ने हमारे साथ बहुत मेहनत की, हमें बहुत मोटिवेशन किया और बार बार रिवीज़न कराया गया हम लोगों को, और बहुत अच्छा मतलब आज जब शुरुआत से लेकर आज तक का बहुत अच्छा सफ़र रहा। थैंक यू सर। Thank you, Daraksha. Now I would like to call Ariba. Please come on the stage and get your prize. बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन. First of all, thank you so much sir for appreciate me this award, and I am Ariba here to talk about my teacher Mr. Muhtashim sir. So who has been a great mentor and guider to me. He has been coaching me for the past few months. Now I have learned so much from him. He always give me a good advice for my study, about my goals and about my life. I am great for everything has been done for me. I want to thank him for being an amazing teacher for me always sir and believing in me. Thank you so much. एक शेर अर्ज करना चाहूँगी सर, इजाज़त हो तो। अर्ज किया है। यस सर। रहबर पिए हमदम पिए ये गमखार हमारे, रहबर पिए हमदम पिए गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। शुक्रिया। Thank you, Ariba. Now I would like to call first prize, who goes to Mantisha. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं नहीं जानती मैं कहाँ से शुरू करूँ, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुश्तर कोचिंग ज्वाइन करने का मेरा फ़ैसला सक्सेसफुल रहा। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बहुत डरती थी कि बोर्ड इतने हार्ड होते हैं, मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, लेकिन सर ने हमें इतना फ्रेंडली, इतना काइंडली हमें पढ़ाया, हमें समझाया, जिसकी वजह से मैं अपने सारे डाउट क्लियर कर पाई और इतने अच्छे मार्क्स अचीव कर पाई।
सर हमें हमारे गोल्स को क्लोज करने के लिए इतने अच्छे से मोटिव करते हैं। और मुझे सर की सबसे अच्छी बात लगती है कि सर हमारे एजुकेशन से रिलेटेड डाउट के अलावा हमारे पर्सनल डाउट भी क्लियर करते हैं। तो थैंक यू सर फॉर दिस अवार्ड। Thank you, Mancha. At last, I would like to call Ariba for continue the conduct. So this is the turn of class 9th student. First, Sana, please come on the stage and get prize. Good evening everyone. Respected sir, all my seniors and my class fellows. Assalamu alaikum. I Sana from class 9 in AMU City Girls High School. मैं सबसे पहले सर का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और ट्रीट करा। मैंने ये कोचिंग अपने फर्स्ट क्लास एंट्रेंस के लिए ज्वाइन करी थी, जिसमें सर ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी और मेरा AMU में सिलेक्शन हो गया। तकरीबन मुझे इस कोचिंग में 10 साल होने वाले हैं और सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। सर हमारी तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं। सर हमें बार बार रिवीजन कराते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा पेपर से हमारी तैयारी कराते हैं और बहुत अच्छे से, जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है और हमें याद भी अच्छे से होता है। इसी वजह से हमारे नंबर भी अच्छे आते हैं। अभी क्लास 9 में मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई और मेरी 85% आई, जिसकी वजह से सर ने हमारी बहुत अच्छे से तैयारी कराई। और सर के लिए जितना कहा जाए उतना कम है और जितना शुक्र अदा करा जाए उतना कम है। वक्त की कमी इसी वजह से मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। Thank you, Sana. Now the turn of Faiza. Please come on the stage and get your prize. Thank you so much, sir, for this award. I don't know what I want to say. Currently, I study in AMU City Girls High School. AMU was my childhood dream. I always think that when I will study in AMU and how this dream come true. One day, my father decided that I should to study in AMU, and then he provided me this Khushtar coaching. I met Shavez sir, Mohtashim sir. They were so hardworking for me. But I remember sometimes I stayed by at last hours by them because of I didn't learn my homework. And that time I think they are not good as well, I think. But now I realize that they are very good, wonderful teacher, seriously. I like one thing most of them, that is he always keep an attractive smile on his face so that student can ask their queries, their questions easily without any fear. If they make a serious image on his face, that student don't ask their queries easily. So this is I like most. Thank you, sir. Thank you so much. Now the turn of Mehak. Please come to the stage and get your prize. Mehak. इन्होंने अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की है। Respected sir and all my dear friends, Assalamu alaikum. My name is Mehak and I study in class 10th in AMU City Girls High School. सबसे पहले मैं सर को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छे से पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं अपनी क्लास में टॉप कर सकी। यहाँ मैंने सबसे पहले 6 क्लास के एंट्रेंस के लिए अपनी कोचिंग ज्वाइन की थी, तभी से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ और तभी मेरा सिलेक्शन हो गया था AMU में। खुशतर कोचिंग एक नाम ही नहीं है, बल्कि ये मेरे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं यहाँ से। मेरे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें रिवीज़न कराते हैं, बार बार टेस्ट लेते हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। और सर अपने फेस पर एक बहुत अच्छी स्माइल रखते हैं, जिसकी वजह से सब बच्चे उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।
at last continue this award, this ceremony, I would like to call Mohtashim sir. किसका था? मुझे मिलेगा, मैं लौटा दिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी है आज के बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे और अच्छी परसेंटेजेस ला रहे हैं। सबसे पहले तो एक नाम छूट गया अभी बोलने से, वो है अल्फिशा। सर वो आप बोलने वाले ना। जी कोई दिक्कत नहीं। और अल्फिशा जो है लास्ट ईयर इन्होंने 90% हासिल किए हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अल्फिशा को, आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अल्फिशा। सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सर ने मुझे इनवाइट किया। मैंने 10th क्लास में ज्वाइन की थी सर की कोचिंग और 11th में भी मैंने तैयारी की, मेरा नाम आया। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने 11th के एंट्रेंस में नाम आने के बाद छोड़ दी और सिविल लाइन में कोचिंग ज्वाइन कर ली, पर वहाँ जाकर सब कुछ बिगड़ गया। मैंने सब कुछ मतलब समझ में नहीं आया मेरे वहाँ जाकर कुछ भी। अब मैं फिर से 12th में ज्वाइन करना चाहती हूँ सर की कोचिंग। और जब मैं वहाँ कोचिंग ज्वाइन करती तब भी सर ने मुझसे कहा था कि अब भी कोई डाउट हो कुछ भी हो तो कभी भी हम आ सकते हैं। और यही सर की सबसे अच्छी बात लगती है कि सर हर डाउट को क्लियर करते हैं, कुछ भी बात सर से पूछ लो। थैंक यू सर। और आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन मिस्टर अल्फैज़, हमारे लिए इस टाइम मिस्टर अल्फैज़ एंड मिस्टर रैयान, जो कि अभी डॉक्टर बनने वाले हैं इंशाल्लाह। तो बुलाना चाहूँगा मैं दोनों को एक साथ। अभी इनसे मिल लीजिए आप, उसके बाद आपको फीस देकर मिलना पड़ेगा। पहले अवार्ड। इन्होंने लास्ट ईयर 12th में 85% हासिल करे। चले डालोगे? चलो डालिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, चलो ये फ़ोटो खींच लेना। इनके आए हैं 82% लास्ट ईयर 12th में। तो और इस साल इन लोगों ने नीट की तैयारी की है और माशाल्लाह अच्छा स्कोर कर आए हैं। तो डॉक्टर तो इनका पक्का बनना है इस साल। तो अस्सलाम वालेकुम, कॉफ़ी कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अल्फैज़, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मोहतशम सर एंड शाबिज सर फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। सबसे पहले ये कहूँगा कि मैंने क्लास टेस्ट में इंटर्न्स की स्टार्टिंग की थी, प्रिपरेशन यहाँ से फर्स्ट, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में यहीं से सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने यहीं से रेगुलरली कोचिंग ज्वाइन कर ली, जिसमें कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह सब मैंने यहीं से कामयाबी हासिल की सब में। फिर अब मैंने पिछली साल नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह सर की मेहनत और दुआ से मेरा 500 प्लस स्कोर हुआ है नीट में। आप भी इसी तरह से मेहनत करें और सर की बात माने, जिससे आप भी इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सर ने मुझे इस काबिल समझा। काबिल तो मतलब सब उम्मीद थी। काबिल सर काफ़ी बार तो मतलब यही रहा है कि डिक्लाइन ही हुआ है मेरा, गिरा ही हूँ। मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी 6 एंट्रेंस मतलब यहीं से दिया था। फिर उसके बाद यहाँ से मेरा एंट्रेंस में सिलेक्शन हो गया था। फिर 6, 7, 8 जो है सर ने ही पढ़ाया था। शाबिज सर का हमेशा स्टार्टिंग से यही रहा था, एक बड़ी सी चीज़ को छोटी सी कर देना। सवाल जितने ही बड़े हैं उसको छोटा करके रख देना सामने समेट कर। फिर शाबिज सर पढ़ाते रहे। उसके बाद आती है 9th में काफ़ी बच्चों ने समझा दिया कि सब बड़े सर हैं भैया, आराम से हल्के ज़रा। तो काफ़ी डर लग गया था कि क्या मार वगैरह ना पड़े, अब अच्छे से पढ़ना है और शांति से। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं।
सर भी काफ़ी फ्रेंडली रहे और शाबाश सर से ज़्यादा ही रहे। अगर कुछ सवाल वगैरह समझ नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं है कि हमें पूछना पड़े, खुद ही समझ लेते हैं एक्सप्रेशन देख के सर के चेहरे पे चल के रहा, समझ आया नहीं आया। उसके बाद मैं बाबा बनने वाला हूँ वैसे। ये तो है सर। चलिए। उसके बाद 9th में जो है मेरी थोड़ी बहुत परसेंटेज कम रही थी, इसी वजह से रही थी, डर की वजह से। फिर 10th में मेरा स्कोर काफ़ी सही रहा था। मैं हमेशा एवरेज ही रहा हूँ, 70-80 के अप्रोक्स रही है मेरा हमेशा परसेंटेज, 85, 70 से तो नहीं गिरा। खैर 11th में भी 85 अप्रोक्स रही थी परसेंटेज, फिर 12th में 82 बन गई। इस साल जो है नीट में पहला फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो 493 अप्रोक्स नंबर बन गए थे। और पूरी उम्मीद है मुझे कि BUMS में इस साल हो सकता है मेरा। थैंक यू। तो जैसे कि अब बच्चों ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है कि मैं क्या बोलूँ। वही तो करो, बोलती बंद कर दी इन बच्चों ने तो मेरी। ऐसे माशाल्लाह सिर्फ हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होता, जब तक बच्चा मेहनत ना करे उसका कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसका कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोग मेहनत करते हैं और फिर आप लोग भी मेहनत करें तो देखिए इंशाल्लाह आप लोग किसी भी मकाम को हासिल कर सकते हैं। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग की मेहनत करना बिल्कुल बेकार। सही बोला ना मैंने रीबा? तो हमारे हाँ एक और बड़े ख़ास मेहमान आए हुए हैं हमारे साकिब साहब। ये भी यही की प्रोडक्ट है और ये बीटेक किया है इन्होंने एमयू से और आज माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे साकिब भाई, थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? फोकस अपनी चीज़ों पर रखो। अगर कभी ऐसा होता है, कभी कभी मार्क्स कम आते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, या किसी कंपटीशन में कम रह गए आपके मार्क्स, तो कभी परेशान मत हो। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, लेकिन एक बार निकलने के बाद आपको कामयाबी मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिले या आपकी मेहनत वेस्ट हो गई। सभी अच्छा होगा इंशाल्लाह, मेहनत करते रहो। सही कहा साकिब साहब ने। अगर आप लोग किसी टारगेट को सेट कर लें तो वो आपको हासिल ज़रूर होगा। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत, जद्दोजहद, लगन बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी होता है दिन ख़राब होता है, एक दिन ख़राब हुआ और आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आप अपने आप को मायूस न करें, कोशिश में लगे रहें। अगर टारगेट आपने सेट कर लिए हैं अपने तो इंशाल्लाह आपको टारगेट ज़रूर हासिल होगा। ऐसे नहीं कि 4 लोग मिले, किसी ने कुछ कहा ले भाई ये कर ले, आपने कहा हाँ चलो ये कर लेते हैं, फिर कोई और मिला उसने कहा ये कर लीजिए तो ये कर लिया आपने। ऐसे टारगेट सेट नहीं होते, टारगेट आपको सेट करने पड़ते और वही उसी बुनियाद पर चलना पड़ता है। दुनिया में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा है, जबकि सही सलाह देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। रिश्तेदार, दोस्त, कभी कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा कि चलो भाई ये चीज़ नहीं हो रही तो ये कर लो। और मैंने अपने बच्चों को कई बार एग्जाम्पल भी दिए हैं कि अगर आप एक टारगेट सेट कर लें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। मैंने MBBS की भी एग्जाम्पल दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है आज हमारे बच्चे MBBS भी करे हुए हैं और आ नहीं पाए क्योंकि पेपर वगैरह चल रहे हैं उन लोगों के इस टाइम, अदरवाइज़ उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते। और फ्यूचर डॉक्टर तो है ही आपके पास, अभी आपसे मुलाकात करवा दी। बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स, डॉक्टर और बड़ी बड़ी ओहदों पर पहुंच चुके हैं। खुशी होती है बच्चे जब कामयाब होते हैं तो, और अल्लाह इन लोगों की मेहनतों को कामयाब करे, इसी दुआ के साथ शुक्रिया। This is time to end the ceremony, but before this, as listen to all, I have write some lines for sir. उस्ताद हूँ मुझे उस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है,
मज़ा तो तब है कि जब किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दूं। मज़ा तो जब है कि जब किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दूं। सिर्फ़ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है।